Hello everyone, welcome to my channel My Biology Mantra. This video is crash course for NEET exam biology part. To score 340 plus marks in biology part, you must follow 3 steps. Read NCERT biology line by line very thoroughly at least 10 times. Then solve 100 MCQs based on NCERT theory per chapter, and the last step to solve previous year NEET question papers. I have prepared separate videos on these 3 steps chapter wise, so you can subscribe my channel and start your preparation right now to crack upcoming NEET exam. Today I am going to start the chapter ecosystem. It is the class 12th NCERT biology chapter, and it is the most important chapter. You can expect 2 to 3 questions or 4 questions can come from this chapter. So let's start our chapter. And one thing more, I'm going to teach this chapter from my notes. Okay, because in book it is very haphazard way it is written, but you believe me, each and every line is there in my notes, and everything is there in my notes. So believe in that, and if you want, I will give you the revision from your book also. So let's start. Ecosystem. So what is ecosystem? Ecosystem is a functional unit of nature. It is biotic and abiotic component. Ecosystem is functional unit. Ecosystem is where the living organisms interact themselves as well as with their surroundings. Okay, so जैसे कि आप small ecosystem देख सकते हैं, pond is also ecosystem. Even man-made ecosystem is aquarium. Aquarium भी एक ecosystem है, लेकिन ये man-made है. Big ecosystem में आप forest ले सकते हैं, sea ले सकते हैं. These all are big ecosystem. What is biosphere? Biosphere is global ecosystem, क्योंकि इसमें सारे spheres आप देख रहे हैं. And it contains all the local ecosystem, pond ecosystem, forest, sea, everything comes inside the biosphere. Then terrestrial and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem are 3 types: forest ecosystem, grassland ecosystem, and desert ecosystem. Whereas aquatic ecosystem are of these types: pond ecosystem, lake ecosystem, wetland ecosystem, estuary ecosystem, and river ecosystem. क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम, दीज ऑल आर मैन मेड इकोसिस्टम. क्रॉप फील्ड हम अपनी विल से करते हैं, अपने तरीके से जो भी हमें सीड चाहिए वो हम ग्रो करते हैं. एक्वेरियम जो भी हमें आपकी फिशेस चाहिए वो हम उसमें डालते हैं. तो दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है? इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं. जो इंट्रैक्शन बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे सॉइल हो गया, एयर, वाटर, ये सारी चीजें आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक में नहीं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स, इसे स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है. जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट लेवल्स पे, उन्हें इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स मूव टू दिस स्पीशीज कंपोजिशन और स्ट्रैटिफिकेशन. जो है ये 2 मेन कंपोनेंट हैं स्ट्रक्चर फीचर ऑफ एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए. उसकी स्पीशीज कंपोजिशन कैसी है और स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है, कैसे वो जो है सेटल डाउन है वेरियस स्ट्राटा में, दैट इज द मेन थिंग. देन ट्रीज, जैसे कि ट्रीज जो है सबसे टॉप वर्टिकल स्ट्राटा, सबसे लंबे लंबे होते हैं, ऊपर की तरफ लेयर ऑफ द फॉरेस्ट बनाते हैं. देन मिडिल जो है वो श्रब बनाते हैं, सेकेंड स्ट्राटा है. देन हर्ब एंड ग्रासेस सबसे बॉटम लेयर बनाती है. तो these are the strata and this process is known as stratification. कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के? इकोसिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड फंक्शन एज अ यूनिट जो है एज पर एस्पेक्ट्स आर. कौन कौन से फंक्शन एज अ यूनिट जो काम करते हैं, एस्पेक्ट्स कौन कौन से, कंपोनेंट कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, इन्हें इसी तरीके से लर्न करेंगे, ये इसमें से ही घुमाकर पूछेंगे. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल. ये चारों चीजें क्या है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी. देखो पहला तो प्रोड्यूस हुआ, फिर डिकम्पोज हो सकता है, फिर उससे एनर्जी फ्लो होगा एक से दूसरी जगह, और फिर वो न्यूट्रिएंट साइकिल में जाकर अपनी साइकिल को पूरा करेगा. तो ये 4 कंपोनेंट ही हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बनाते हैं. ये इनकी फंक्शनल यूनिट्स हैं. एग्जाम्पल हम देखते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का. ये सेल्फ सस्टेनेबल है, ये डिपेंडेंट नहीं, ये अपने आप में पूरा है पॉन्ड इकोसिस्टम. इसके 4 बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि शैलो वाटर बॉडी है पॉन्ड. उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट इसमें क्या क्या है? वाटर है विद डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो होते ही है इसमें. एंड क्या होता है? सॉइल भी होता है. रिच डिपॉजिट एट द बॉटम, बॉटम में सॉइल होती है. देन द सोलर इनपुट, सोलर रेडिएशन तो इसमें पड़ती है. टेम्परेचर साइकिल भी होता है, डे लेंथ, अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो सब इसको रेगुलेट करते हैं. एंड रेट और फंक्शन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं.
इसके बाद ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में आ जाएं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो खाना अपना खुद बना सकते हैं वो कौन से हैं? एक तो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, आप जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और ये बिगनर हैं, ये सी वगैरह में जितने भी एक्वेटिक सिस्टम है उनका जो फूड चेन है वो फाइटोप्लैंक्टन से ही शुरू होती है। सम एल्गी हैं, फ्लोटिंग एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस में जो पाए जाते हैं वो सब क्या है? ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड है। कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं पॉन्ड में? जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। देन फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से पाए जाते हैं? सब फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, फ्लैजलेट्स हैं, अबंडेंट एट द बॉटम, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बॉटम में। तो दिस पॉन्ड इकोसिस्टम ये जो है परफॉर्म करता है सारे तरीके के फंक्शन एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल। जो जो फंक्शन बायोस्फीयर में होते हैं वो सारा का सारा आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में भी मिलेगा। एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है? कन्वर्जन, रेडिएंट एनर्जी बाय ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो है वो रेडिएंट एनर्जी का यूज करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जानते हैं आप, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, द सेम प्रोसेस। ऑटोट्रॉप्स जो है कंजम्पशन होता है, कंज्यूम करे जाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम करता है उन्हें। जो डेड मैटर है उनमें डिकम्पोजिशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है एंड रिलीज मिनरल्स रिलीज करते हैं बैक एंड यूज बाय ऑटोट्रॉप्स। तो इस तरीके से न्यूट्रल साइकिल यानी चारों, प्रोडक्टिविटी भी हो रहा है, जो अभी आपने 4 स्टेप पढ़े, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी, मिनरल वापस अपनी साइकिल में भी जा रहा है। तो दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एनर्जी का जो होता है टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल, और उसकी जो डिसिपेशन होती है, लॉस ऑफ हीट जो है एनवायरमेंट में रिलीज होती है। तो दिस यानी पॉन्ड इकोसिस्टम अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है और बिल्कुल बायोस्फीयर की तरह काम करता है। दूसरा आप आ जाइए प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी कांस्टेंट सप्लाई होती है इकोसिस्टम को, तो वो फंक्शन करती है और सस्टेन रहता है। अगर कांस्टेंट सप्लाई सोलर एनर्जी की नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ बायोमास या वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड के दौरान ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको वेट या ग्राम पर स्क्वायर में इसे मेजर किया जाता है। एनर्जी में करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में इसे करते हैं। इसकी मेजरमेंट यूनिट्स आप लर्न कर लेंगे, ये पूछी जा सकती हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जो बायोमास प्रोडक्शन का रेट है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। ये ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर में आप देख सकते हैं, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर जो है ये जो रेट ऑफ सोलर एनर्जी को कैप्चर करके बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं, इसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दूसरे वर्ड्स में कहा जा सकता है। तो प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो 2 तरीके की होती है, जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो जीपीपी है वो इकोसिस्टम को ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटो। ये डायरेक्टली जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो भी इकोसिस्टम जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर का करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे हम जीपीपी कह देते हैं। यानी पूरा का पूरा कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी जो होती है उस रेट को हम जीपीपी कहते हैं। तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ जीपीपी ये जो है प्लांट जो अपने रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर लेता है। तो जब रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाता है तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो क्या हुई? जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी में जो लॉस हुआ है, जो एनर्जी लॉस हुई गई उसको छोड़ के, तो यानी नेट गेन कितना हो गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? एनपीपी, यानी जीपीपी माइनस आर रेस्पिरेटरी लॉसेस, एनपीपी। तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी, यानी नेट प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरो, ये एनपीपी ही है जो नेक्स्ट लेवल पे या हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जीपीपी क्या है? द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी रेट ऑफ जितनी सोलर एनर्जी कैप्चर करी जाए या टोटल जितना प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का या बायोमास का हुआ है उसे जीपीपी बोलेंगे, और अगर उसमें रेस्पिरेटरी लॉसेस को लेस कर दिया जाए तो बन जाएगा एनपीपी। एनपीपी इज द रिमेनिंग बायो एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर।
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, जब नया ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर बनाते हैं, कंज्यूमर ने जब पहले तो प्रोड्यूसर ने बनाया तो वो जीपीपी हो गया, फिर कंज्यूमर जो बनाएंगे उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। इट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट की स्पीशीज कैसी है, इनहेबिट वो कहाँ करता है पर्टिकुलर एरिया में, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितनी मिल रही है उसको, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट की कितनी है, इन सब पे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर, जो एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी है ऑफ बायोस्फीयर वो एनपीपी आपकी जो एनपीपी कितनी है 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑर्गेनिक मैटर है जो अभी बायोस्फीयर का चल रहा है। 55 बिलियन टन्स जो है हमें ओशियन से मिलता है और 115 बिलियन टन्स हमें लैंड से जो नेट प्रोडक्टिविटी गेन होती है। तो ओवरऑल कितना है 170। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कर देते हैं, CO2 वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? डेड और प्लांट एनिमल रिमेन्स जो हैं वो डिकम्पोजर्स के रॉ मटेरियल बनते हैं। कम टू डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या है? इट इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेड रिमेन्स। ये जो वही रॉ मटेरियल है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है उसको डेट्रिटस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स देख लीजिए। डिकम्पोजिशन के स्टेप्स फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। दीज आर द 5 स्टेप्स। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि डिकम्पोजिशन के। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सबसे पहले देखो क्या करते हैं, द प्रोसेस व्हेन डेट्रीवोरस जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं वो डेट्रिटस यानी जो डेड रिमेन्स वगैरह हैं उनको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होती है? जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सॉइल में गो डाउन चले जाते हैं, हॉरिजन में सॉइल और हॉरिजन में चले जाते हैं, और कुछ तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो अनअवेलेबल रहते हैं, अनअवेलेबल सॉल्ट्स होते हैं, वो प्लांट्स को नहीं मिल पाते, तो लीचिंग हो जाता है। फिर कैटाबोलिज्म हो गया, द प्रोसेस व्हेन these bacterial and fungal enzymes degrades detritus into simpler inorganic substances। जब बैक्टीरियल और फंगल जो फंगल एंजाइम्स होती हैं जब वो डिग्रेड करती हैं डेट्रिटस क्या हो गया आपका डेड रिमेन्स जो हैं उनको सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसे कैटाबोलिज्म वैसे भी ब्रेकडाउन प्रोसेस है। देन ह्यूमिफिकेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर का जो एमॉर्फस सब्सटेंस जब ये डेट्रिटस जब कैटाबोलिज्म होता है तो एक एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड और एमॉर्फस सब्सटेंस क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं ह्यूमस। ये हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, इसमें जल्दी माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता है और ये भी डिकम्पोजिशन में जाता है लेकिन बहुत स्लो रेट में। दिस ह्यूमस इज कोलाइडल इन नेचर एंड सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा होता है। देन कम टू लास्ट स्टेप दैट इज मिनरलाइजेशन, यानी आपके हो गए फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ह्यूमस फर्दर, अब ह्यूमस भी डिग्रेड होता है, कुछ माइक्रोब्स उसे डिग्रेड करते हैं और रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को उनकी साइकिल में, तो उसे बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो यानी अगर हम देखें तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती हैं जब डेट्रिटस या डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो है अकर डिकम्पोजिशन इन द सॉइल, अकर ड्यूरिंग जब डिकम्पोजिशन होता है उस समय होता है, बाद में होता है ये। तो डिकम्पोजिशन जो है लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस कैसा है, दूसरी चीज क्लाइमेटिक फैक्टर्स उस जगह पर, अगर गर्मी कम है, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा खासा 37 डिग्री टेम्परेचर तो चाहिए, बहुत ठंडा है तो नहीं होगा डिकम्पोजिशन, तो ये सब फैक्टर्स उसमें लगते हैं। डेट्रिटस रिच इन लिग्निन, लिग्निन जानते हैं बहुत हार्ड मटेरियल होता है, एंड किटिन, ये दोनों जो है डिकम्पोजिशन रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। डेट्रिटस रिच इन नाइट्रोजन, और जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो जो है जैसे कि शुगर वगैरह है उसमें डिकम्पोजिशन बहुत, शुगर वगैरह में बहुत क्विकली होता है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर सबसे ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन, जल्दी होगा या देर से होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और सॉइल मॉइस्चर पे, बिकॉज दे इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रोब, क्योंकि सॉइल की माइक्रोबियल ग्रोथ पे ये डिपेंड करता है। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर्स डिकम्पोज को फेवर करता है, लेकिन अगर लो टेम्परेचर ठंडा
कर दें या एनारोबियासिस कर दें, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये डिकम्पोजिशन को रोक देगा, इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ह्यूमस तो बन जाएगा, आगे डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। अब आप आ जाएं एनर्जी फ्लो में। तो ये जो एनर्जी फ्लो है, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। केवल जो बहुत डीप सी है हाइड्रोथर्मल, वहां पे नहीं जा पाती एनर्जी, सोलर एनर्जी, अदरवाइज सब जगह सोर्स क्या है, सन है। ऑन द ऑफ द इंसिडेंट अगर हम देखें, सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी पार है। जितने भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है जो हमें मिलती है। प्लांट जो है प्लस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, इन प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट जो है कैप्चर करता है 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को ही कैप्चर करता है प्लांट, 2 to 10%, एंड सस्टेन द, और सोचो उसी 2 to 10% जो उसने एनर्जी रेडिएशन ली है, उसी से सारा लिविंग वर्ल्ड में एंटायर एनर्जी सस्टेन हो रही है, उसी से सारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, और इकोसिस्टम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को भी फॉलो करता है। दे नीड अ कांस्टेंट, क्योंकि हमें कांस्टेंट नीड ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स और दे रिक्वायर एंड टू काउंटरएक्ट, और उस बार बार उसको कैटाबॉलिज्म करने में और एनाबॉलिज्म करने में मॉलिक्यूल्स की जरूरत हमें कॉन्टिन्यूस पड़ती है। CO2 और H2 कॉन्टिन्यूस चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। Then come to the universal tendency toward the increasing disorderliness, तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ, यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। ग्रीन प्लांट्स जो है इन इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स होते हैं। चेन और वेब इज फॉर्म ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी, आपस में एक दूसरे में जो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं उसकी वजह से चेन या फूड वेब बनती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर, कोई एनर्जी ऐसी नहीं जो बॉडी में हमेशा थ्रू आउट हमेशा ही रहे। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन, यानी डिकम्पोजर चेन की बिगिनिंग या फूड वेब की बिगिनिंग शुरू हो जाती है, डिकम्पोजर वेब की बिगिनिंग होती है वहां से। ऑल एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर हैं और हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनिमल फीड प्रोड्यूसर, तो अगर एनिमल जो है वो फीड प्रोड्यूसर को फीड करते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, अगर प्रोड्यूसर को खाते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे हर्बीवोरस रैबिट वगैरह हो गए। इफ दे ईट एनिमल विच इन टर्न ईट प्लांट्स, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, अगर वो ऐसे एनिमल को खा रहे हैं जो एनिमल फूड को खा, जैसे रैबिट जो है वो प्लांट्स को खाता है, तो रैबिट को जो खाएगा वो क्या होगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोरस, इंसेक्ट, बर्ड्स और ये आपके मैमल्स जो इसमें आ जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर्बीवोरस कौन से हो गए, मोलस्क हो गए, है ना। देन कम टू अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, ध्यान रखेंगे GFC इज सिंपल फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। ये कौन सी है, ग्रास जो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर रहे हैं, इनको खाया गोट ने, प्राइमरी कंज्यूमर है गोट क्योंकि डायरेक्टली प्लांट को खा रही है। मैन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि मैन किसको खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को, जो गोट जो प्लांट खाता है, इसलिए मैन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक, तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास हॉपर जो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फ्रॉग जो है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर हो गया, सेकेंडरी स्नेक जो है आपका सेकेंडरी कार्निवोर और टर्टरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू detritus food chain, DFC food chain begin with the dead organic matter, decomposers, fungi and bacteria, and they meet their energy and the nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus, and also called saprotrophs। इन्हें saprotrophs भी बोला जाता है क्योंकि ये अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट डिग्रेड करके, जो डेड रिमेन्स है उनको डिग्रेड करके निकालते हैं। डिकम्पोजर्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं जो कि डेड मैटर में, और वो जो है डेड मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC का द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्रिटस चेन, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो डेट्रिटस फूड चेन में फ्लो करती है DFC देन थ्रू द GFC, यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में DFC से में ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है एज कंपेयर टू GFC।
ठीक है। अब आ जाइए डीएफसी। डीएफसी जो है कनेक्टेड टू जीएफसी एट सम लेवल। सम जीएफसी एंड डीएफसी, इसमें कुछ डीएफसी जो है वो प्रे होते हैं जीएफसी के। सम ओमनीवोरस कॉकरोच और क्रो हैं, जो कि वो कॉकरोच आपका डेड रिमेन्स को भी खा रहे हैं और फ्रूट और सीड्स को भी खा रहे हैं। नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन। इसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, यानी यो कुछ सोर्स या क्या उनका न्यूट्रिशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो फूड चेन में कौन सा प्लेस उनको मिला हुआ है, ये उनका ट्रॉफिक लेवल है। फूड चेन की कैटेगरीज को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर की होती है, सेकंड जो है वो हर्बीवोर्स की होती है, प्राइमरी कंज्यूमर भी जिन्हें बोलते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स की होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी इन्हें बोलते हैं, एंड सो ऑन, आगे तक आप देख सकते हैं। देन जैसे कि आपका यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री वगैरह आएगा इसमें। प्राइमरी कंज्यूमर जो है सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर है, जू प्लैंक्टन, ग्रास ऑफर, काऊ वगैरह आएंगी। सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर, बर्ड, फिशेस, वुल्फ वगैरह आएंगी। एंड टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टॉप कार्निवोर है ये, इसमें मैन एंड लैन आएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होती जाएगी। ऑर्गेनिज्म डाइज कन्वर्टेड इनटू डेट्रिटस, डेड बायोमास, और एनर्जी सोर्स इससे फ्लो डाउन होता है और डिकम्पोजर्स इसे लेते हैं। और तो ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स। तो जो बड़े लेवल के ट्रॉफिक लेवल के लोअर लेवल के ट्रॉफिक लेवल के पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। नाउ कम टू स्टैंडिंग क्रॉप। तो व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप जो है आपकी ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पे सर्टेन मास और लिविंग मैटर होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ये मेजर किया जाता है एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बायोमास, द नंबर इन द यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ यूनिट एरिया। इसे फ्रेश या ड्राई वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट होता है। और द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल जो है वो जीएफसी में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज 10% लॉ को फॉलो करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ही फॉलो होती है, 90% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल, ये हम कर चुके हैं पहले की क्लासेस में भी। नेचुरल जीएफसी आपकी कौन सी है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आ जाए, ये क्या बताता है? ये शेप ऑफ द पिरामिड को बताता है। इसमें बेस जो है वो ब्रॉड होता है, जो एपेक्स है वो उसका नैरो होता है। वन गेट सिमिलर शेप आइदर फूड और एनर्जी रिलेटेड, तो बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे वही मिलता है। द रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास या एनर्जी के फॉर्म में हमें पिरामिड्स मिल सकते हैं। बेस जो है वो प्रोड्यूसर बनाते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। एपेक्स जो है टर्शरी या टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर बनाता है। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं आपके हैं। 3 में आपका है एक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर में। तो एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास, नंबर कितने इंडिविजुअल, इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म टू द ट्रॉफिक लेवल, उस ट्रॉफिक लेवल पे वो पिरामिड ऑफ नंबर बनाता है। नो जनरलाइजेशन इसमें नहीं होता। इफ थोड़े से अगर फ्यू इंडिविजुअल कंसिडर करें तो कोई जनरलाइजेशन नहीं होता। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीशीज एज सच। ये एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. एक स्पीशीज 2-3 ट्रॉफिक लेवल को फॉलो करती हो सकता है वो हर्बीवोर्स भी हो, कार्निवोर्स भी और प्राइमरी कंज्यूमर भी हो, तो ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया स्पैरो। स्पैरो जो है वो व्हेन इट ईट सीड, फ्रूट पी, तो प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन अगर वो इंसेक्ट और वर्म्स को खा रही तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास ये सब अपराइट होते हैं। most of the ecosystem producer more in number and biomass energy at lower level is always more low जितना ट्रॉफिक लेवल कम होगा, छोटा वाला होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा होंगे। एक्सेप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन बिग ट्री, एक बिग ट्री में कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट जो रहते हैं वहां पर खाते रहते हैं, चल तो नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स भी है डिपेंडिंग ऑन इंसेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स ईटिंग, जो कि इंसेक्ट्स को खा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्री है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं और ये इस तरीके से आपका बना है। तो ये पिरामिड क्या हुआ गया आपका? पिरामिड इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। तो पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कौन सा है? ट्री का। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज ऑल्सो इन्वर्टेड। जैसे फाइटोप्लैंक्टन कम है, जू प्लैंक्टन उससे ज्यादा है 21 है, फिश उनसे भी ज्यादा 100 है। तो ये देखा जाए तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी भी इन्वर्टेड है और पिरामिड ऑफ ट्री इज ऑल्सो इन्वर्टेड इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में 2 इन्वर्टेड है, एक सी और एक
ट्री। नाउ कम टू पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमेशा ऑलवेज ऑपराइट होता है, वो सीधा ही बनेगा, कोनिकल एपेक्स ऊपर और ब्रॉड बेस। लिमिटेशन ऑफ पिरामिड, बायोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। ये लिमिटेशन है पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो अगर एक स्पीशीज 2 कैटेगरी को बिलोंग करी तो उसको नहीं लेते हैं। इट अज्यूम सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, और एक सिंपल चेन लेते हैं कि जैसे अब ग्रास है वो गोट ने खाया, जरूरी गोट ने खाया, हो सकता कोई और एनिमल खाए, तो हम एक सिंपल एक जनरलाइज कर लेते हैं। इट डज नॉट एकोमोडेट फूड वेब को नहीं काउंट करते हैं। एंड सेप्रोफाइट डज नॉट, और सेप्रोफाइट को कोई स्पेस नहीं दिया गया है, कोई जगह नहीं दी गई है इस ट्रॉफिक लेवल पे, फूड चेन पे। तो ट्रॉफिक लेवल जो है आपका, इसमें देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इतने हैं 5842000, प्राइमरी कंज्यूमर 708000 एंड सेकेंडरी कंज्यूमर 354000 एंड टर्टरी कंज्यूमर जो है वो 3 है। देखिए टर्टरी कंज्यूमर केवल 3 है, यानी इतने सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर केवल 3 इंडिविजुअल्स को ही, टर्टरी कंज्यूमर को ही फीड कर पा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं। द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओनली 3 टॉप कार्निवोरस आर सपोर्टेड इन इकोसिस्टम बेस्ड इन द प्रोडक्शन नियर 6 मिलियन प्लांट्स। 6 मिलियन प्लांट्स लगभग 3 टॉप कार्निवोरस को, कंज्यूमर्स को ही सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसकी एनर्जी को ही। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास शो करें अ शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। देखिए अगर बायोमास का देखें तो भी वैसे ही है, 809 इसका केजी पर मीटर स्क्वायर ड्राई वेट है, 37 प्राइमरी कंज्यूमर का है, सेकेंडरी का 11 है, तो टर्टरी कंज्यूमर का 1.5 ही है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप का ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। ये थोड़ा इन्वर्टेड है, ये आपका एक्सेप्शन है। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन वो कम है और जू प्लैंक्टन ज्यादा है, इन्वर्टेड है। नाउ कम टू एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूस कन्वर्ट ओनली 1% एनर्जी इन द सनलाइट एंड अवेलेबल टू देन टू इनटू एनपीपी। 10,000 जूल्स जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर में है, तो 1000 जो है 10% रूल इसमें चलेगा, और ये 10 जूल तक पहुंच जाएगा टॉप कार्निवोर्स में। नाउ कम टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ कम टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनका कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ, या चेंज होने के साथ साथ। जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन होता है वैसा ही चेंज कम्युनिटीज में की कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर में कॉन्स्टेंटली होता रहता है। सो दिस चेंज इज ऑर्डरली, ये चेंज जो है एक ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। और इस चेंज की वजह से क्या रीच होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी सबसे बेस्ट जो है लेवल वो अटेन करता है, दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट के पैरेलल। तो द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जो ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज जो स्पीशीज के कंपोजिशन में होता है उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। इस सक्सेशन में, ड्यूरिंग सक्सेशन, कुछ स्पीशीज जो है वो कोलोनाइज करती हैं एक एरिया में और उसकी जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत न्यूमरस होती जाती है धीमे धीमे, वेयरएज दूसरी जो पॉपुलेशन है उनकी डिक्लाइन होती जाती है, डिसअपियर हो जाती है। फिर क्या होता है, द इंटायर सीक्वेंस जो कम्युनिटी का होता है वो सक्सेसिवली चेंज होता है गिवन एरिया में, इसे शेयर बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू सेरल कम्युनिटी। तो ये जो सेरल कम्युनिटी है ये क्या है, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल जो कम्युनिटी होती है उसे सेरल स्टेज या सेरल कम्युनिटी जो उसने रीच किया है उसको बोलते हैं। इन द सक्सेसिव सेरल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, यानी बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज के चेंजेस आते हैं वहां पर, और इंक्रीज इन द नंबर, हो सकता है कोई स्पीशीज वहां पहले ना हो और वो फिर बहुत ज्यादा डेवलप हो और दूसरी डिक्लाइन हो जाए, तो यानी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जैसे जैसे कम्युनिटी में चेंज होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज या टोटल बायोमास इंक्रीज हो गया, ये सारे चेंजेस सक्सेसिव सेरल स्टेजेस में आता है। देन द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज जो है ये किस वजह से, ड्यू टू सक्सेशन अकर्ड सिंस लाइफ स्टार्ट एट द टाइम, यानी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो हुआ था, और ये इवोल्यूशन के प्रोसेस से होते होते आज का जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी है वो है। सो दिस इज द इवोल्यूशन, ये पैरेलल, यानी टाइम जो सक्सेशन होता जा रहा है और जो इवोल्यूशन है ये सब पैरेलल प्रोसेस है। तो सक्सेशन क्या है, अ प्रोसेस दैट स्टार्ट
पार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ये सक्सेशन कब होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जब एरियाज वेयर नो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस जगह पर पहले नहीं एग्जिस्ट करता है और उस जगह पर अगर कुछ ग्रो होती है तो उसे ग्रोथ होती है, उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। ये जनरली बेयर रॉक है या नियरली कूल्ड लावा, जैसे ज्वालामुखी जहां पर अभी भी ठंडा हुआ है, या न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, जो पॉन्ड और रिजर्वायर जो अभी अभी बना है, वो सब क्या है, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है। सेकेंडरी सक्सेशन में वो एरिया होते हैं जो कि किसी वजह से जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन किसी वजह से अब वहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी पहले थी और अब डिस्ट्रॉय, चाहे फॉरेस्ट फायर की वजह से हो या कोई और कारण की वजह से हो। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इन जनरली स्लो होती है। बिफोर बायोटिक कम्युनिटी डाइवर्स कैन बिकम एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल। तो जब तक ये कम्युनिटी डाइवर्सिटी वहां पर इकट्ठी होती बनती है तब तक वहां पर पहले क्या था, वहां पे सॉइल तो होनी चाहिए कम से कम। तो जैसे जैसे बेयर रॉक होती है तो बहुत सालों तक उसमें नेचुरल प्रोसेस होता रहता है, 1000 ईयर लगते हैं, तब वो फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट होती है। ये प्राइमरी सक्सेशन की बात बता रहे हैं हम। उसके बाद जाके उसमें बाकी के प्रोसेस होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें सॉइल पहले से रहती है, नेचुरल वेयर बायोटिक कम्युनिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन अबेंडेंट फार्मलैंड्स है, बर्डन और कट फॉरेस्ट है, फ्लडेड लैंड है, यानी सॉइल तो वहां पर है ही है। यानी सेकेंडरी सक्सेशन में कम टाइम लगता है प्राइमरी सक्सेशन से। तो सिंस सम सॉइल सेडिमेंट्स इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फोकस किस में करता है, ऑन चेंज इन वेजिटेशन। वेजिटेशन में टोटली इकोलॉजिकल सक्सेशन से चेंज हो सकता है किसी एरिया में, और ये इफेक्ट करता है फूड और शेल्टर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स। वहां पर जो पहले रहते थे हो सकता है कोई और एनिमल वहां सडनली डेवलप हो जाए। तो सो व्हेन सक्सेशन प्रोसीड्स चेंज अकर इन नंबर ऑफ टाइप एंड डिकम्पोजर्स। हर चीज में चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। At any time during primary or secondary succession, natural और human induced disturbances जैसे कि फायर, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे के सारे जो है डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं पर्टिकुलर सीरियल स्टेज को ऑफ सक्सेशन एट एन अर्लियर स्टेज कर सकते हैं। ये यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं उस सक्सेशन प्रोसेस में। तो सक्सेशन ऑफ प्लांट में क्या होता है, ये हाइड्राक है। जैसे हाइड्रैक जो सक्सेशन है ये वेटर एरियाज में, जो गीला एरिया वहां पर होता है, और सक्सेसफुल सीरीज प्रोग्रेसेस जैसे हाइड्राक भी जो है हाइड्रिक कंडीशन, वाटर कंडीशन से मेजिक कंडीशन में, जहां पे सेमी वाटर कंडीशन उस कंडीशन में जाता है। जो जेराक कंडीशन सक्सेशन है वो टेक प्लेस इन द ड्राई एरियाज, जैसे कि जहां पर सॉइल बहुत ड्राई है वहां पर। एंड सीरीज प्रोग्रेसेस, इसमें भी दोनों ही कंडीशन में इनको मेजिक कंडीशन इनको अचीव करनी है। जेरिक को भी मेजिक कंडीशन में जाना है जहां पे थोड़ा बहुत पानी है, और हाइड्रिक कंडीशन को भी मेजिक टेस्टिल जैसे टाइप में जाना है। तो हाइड्रैक एंड जेराक जो है लीड टू मेसिक मीडियम वाटर कंडीशन में जाना है इन्हें। ये इनका क्लाइमेक्स कम्युनिटी कंडीशन है। पैनियर स्पीशीज वो होती हैं जो कि बेयर एरिया को इन्वेड कर देती हैं, जैसे बेयर रॉक। तो इन प्राइमरी सक्सेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले बेयर रॉक होती है जो जैसे मैंने बताया 1000 ईयर लगते हैं उसको फर्टाइल सॉइल होने में। वहां पर लाइकेंस जो है वो डेवलप होते हैं, सिक्रीट एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि डिजोल्व करती है रॉक्स को। फिर वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन से धीमे धीमे लेटर ऑन जो है बहुत स्मॉल प्लांट, यानी सबसे पहले यानी पहले लाइकेंस, फिर कौन डेवलप हुआ, ब्रायोफाइट्स। विद टाइम उसके बाद थोड़े बिगर प्लांट डेवलप होते हैं, फिर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, फिर एक स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बनता है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले बेयर रॉक, उसमें लाइकेन ने एक्ट किया, वेदरिंग सॉइल फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्रायोफाइट डेवलप हुए, ब्रायोफाइट्स के बाद बिगर प्लांट्स हुए, उसके बाद क्लाइमेक्स अचीव किया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अचीव किया। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज इन्वायरमेंटल रिमेन्स अनचेंज। इन्वायरमेंट अनचेंज होगा तो जो कम्युनिटी है सीरियल स्टेजेस चेंज हो जाएंगी। तो जीरोफिटिक हैबिटेट कन्वर्टेड विद टाइम एंड मिजोफाइट्स। तो जीरोफिटिक हैबिटेट को टाइमली वो धीमे धीमे करके मिजोफाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर जो है, पायनियर्स और स्मॉल, तो वाटर में क्या होता है, पायनियर्स और स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं जो कि रिप्लेस होते हैं रूट सबमर्ज प्लांट से, इस स्टेज से। देन रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म से जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं या वहां पर डेवलप हो जाते हैं। फॉलोड बाय उसके बाद सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आती है, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आती है, फिर मार्श मीडो स्टेज आती है, फिर स्क्रब स्टेज आती है, और फाइनली ट्रीज डेवलप होते हैं। ये आपके पॉन्ड जैसे पॉन्ड है वो कैसे भर के बन जाता है फॉरेस्ट, ये उसके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत सालों में पॉन्ड भी धीमे धीमे करते करते लैंड में चेंज हो जाता है। वाटर बॉडी विद टाइम कन्वर्टेड टू लैंड।
इन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, स्पीशीज डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ सॉइल कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी उस जगह की, वो उन सब पे डिपेंड करता है सेकेंडरी सक्सेशन। सिंस सॉइल जो है सेकेंडरी सक्सेशन में होती है, इसलिए ये अपने क्लाइमेक्स को जल्दी रीच करता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत 1000 ईयर्स लगते हैं टू रीच क्लाइमेक्स स्टेज। तो जितने भी सक्सेशन है वो प्रोसीड करते हैं सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी मेजिक कंडीशन इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो जो स्टैंडिंग स्टेट होती है उसमें द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एट एनी गिवन टाइम। जो वो होती है वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट है, ठीक है। इट वेरीज, ये जगह अलग अलग जगह पर स्टैंडिंग स्टेट अलग अलग होगी, एंड ऑल्सो सीजनल बेसिस होती है। न्यूट्रिएंट्स जो है नेवर लूज फ्रॉम द टाइम ऑफ द इकोसिस्टम एंड रिसाइकल टाइम अगेन, ये रिसाइकल होते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है जो बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो यानी रॉक, एयर, वाटर, इन सबका ये साइकिल चलता रहता है। न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरीके की हो सकती है, गैसेस और सेडिमेंट्री। गैसेस में जो है रिजर्वायर ऑफ गैसेस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जबकि सल्फर और फास्फोरस साइकिल जो है रिजर्वायर लोकेटेड इन द अर्थ सरफेस में, ये सेडिमेंट्री है, सॉइल में अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, pH, टेम्परेचर रेगुलेट करता है द रेट ऑफ रिलीज ऑफ इन न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर। जो बायोटिक कम्युनिटी है और डायनेमिक है, वो डायनेमिक है और अंडरगो चेंज विद टाइम विद सीक्वेंशियल या ऑर्डरली मैनर में इकोलॉजिकल सक्सेशन में होती रहती है। द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर टू फिल द डेफिसिट ऑफ न्यूट्रिएंट, ये तो आपको पता ही है। देन कम टू कार्बन साइकिल। 49% जो ड्राई वेट है कार्बन ऑर्गेनिज्म का बनाता है, 49% ड्राई वेट कार्बन से बनता है ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टू वाटर। 71% कार्बन ग्लोब को डिसॉल्व इन ओशियन में है और ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन साइकिल जो है एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म में होती है। 4 × 10⁻13 kg कार्बन इज फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस एनुअली। लर्न कर लेंगे ये सारी यूनिट्स, सारी इंफॉर्मेशन। 4 × 10⁻13 kg कार्बन फिक्स होती है फोटोसिंथेसिस एनुअली, हर साल। CO2 रिटर्न कंसिडरेबली बाय रेस्पिरेशन से रिटर्न हो जाती है। डिकम्पोजर ऑल्सो रिटर्न करते हैं CO2 को। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, एटेक्सा, ये भी CO2 को एटमॉस्फेयर में रिटर्न करती है। कुछ अमाउंट ऑफ जो CO2 है वो लॉस्ट हो जाती है, सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन से साइकिल से रिमूव हो जाती है। फॉस्फोरस साइकिल में नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस क्या है, रॉक है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। जब ये रॉक वेदर्ड होते हैं तो मैन्यूट अमाउंट ऑफ जो है वो फॉस्फेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल सोल्यूशन में एंड आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट से फॉस्फेट जो है हर्बीवोर्स में जाता है और फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स वगैरह, और फिर जो डेड और वेस्ट है उससे वापस डिकम्पोज होकर ये बैक्टीरिया से फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग जो सोल्युबलाइज कर सकते हैं वो वाले बैक्टीरिया में एक्ट करते हैं और इसको वापस डेड से फॉस्फेट निकालकर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। नो रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता फॉस्फोरस का। रेनफॉल इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस कार्बन जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो फिर गैसियस एक्सचेंज जो हुआ फॉस्फोरस का वो नेग्लिजिबल होता है। इकोसिस्टम सर्विसेज, जो हेल्दी इकोसिस्टम्स होते हैं वो बेस होते हैं वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल एस्थेटिक, जो देखने में सुंदर है, गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है वो प्रोसेस्ड एंड नेम्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम हमें दे रहा है वो एक्चुअली इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जैसे हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्यूरिफाई एयर वाटर, और जो ड्रॉट्स और फ्लड से हमें बचाता है, साइक्लिक न्यूट्रिएंट्स जनरेट फर्टाइल सॉइल करता है, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट देता है, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्रॉप्स, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है। जो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा थे और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने रिसेंटली ट्राई टू पुट प्राइस टैग, अगर नेचर लाइफ जो सपोर्ट सर्विसेज है उनमें अगर टैग लगाए तो उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने ये बताया कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने पुट एवरेज प्राइस टैग ऑन $33 ट्रिलियन अ ईयर ऑन द फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज। सारी इकोसिस्टम सर्विसेज में उन्होंने $33 ट्रिलियन अ ईयर लगाया है, जिसमें ग्लोबल ग्रास नेचुरल प्रोडक्ट जो GNP है वो उसका लगाया है $18 ट्रिलियन US।
और आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सोर्सेज स्वैल फॉर्मेशन अकाउंट्स 50% तो स्वैल फॉर्मेशन को ही मिलता है और बाकी कंट्रीब्यूट करता है जैसे रिक्रिएशन, न्यूट्रन साइकिल लेस देन 10%. द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की इसमें यूज करी है और ताकि आपकी कोई भी चीज ऐसी ना हो जो इसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इसे कर दिया. अगर आपको जरूरत है तो यू कैन कमेंट, आई कैन टीच यू फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो. सो जस्ट रिवाइज इट मेनी टाइम्स एंड मेक यूज ऑफ इट. ऑल द बेस्ट.